Hello, people. Welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. We are at day 21. That means end of third week. I hope you guys are following the series. So let's see what's the topic for today. Leadership styles, the evolving role of transformational leadership. Okay. लीडरशिप पैराडाइम्स क्या होता है? फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क्स या स्ट्रक्चर था कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है. They have undergone profound metamorphosis. Profound is deep, okay, and in-depth change or transformation. Metamorphosis is the process of change. ठीक है. I have space here. Let me write it. With transformational leadership emerging as an indispensable framework in an era defined by volatility, ambiguity and disruption. ठीक है. अभी का करंट इन्वायरमेंट कैसा है? इट्स वोलाटाइल, दैट मीन्स रैपिडली चेंजिंग, बहुत ही डायनामिक. ठीक है. एम्बिग्विटी, जहाँ पे डाउट्स हैं, इट्स एम्बिगुअस, नॉट वेरी क्लियर व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट द सिनेरियो इज गोइंग टू लुक लाइक. माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक एंड डिसरप्शन, मतलब हर रोज कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. एवरी अदर डे देयर इज अनदर कंपेटिटर. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में वी नीड अ लीडर हु इज ट्रांसफॉर्मेशनल, who can adapt to changes and also implement the changes and inspire people to like keep pace with the change. ठीक है. And it is emerging as an indispensable something that you cannot do away with. होना ही पड़ेगा ये क्वालिटीज, indispensable, चाहिए ही चाहिए वो क्वालिटीज. ठीक है. Unlike transactional leadership, which predicates itself on structured incentives and hierarchical control. पहले ऐसा हुआ करता था, right? There is a boss and then there are subordinates. The boss is going to, design the entire work structure and they're going to follow work accordingly. तो ये एक बहुत ही transactional leadership था. You work for the company, you get your pay, you get your benefits, you listen to your immediate manager, you get the work done. So बहुत ही transactional था. There's a lot of give and take here. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? इट ट्रांसेंड्स, इट गोज बियॉन्ड मियर टास्क डेलीगेशन. मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में सिर्फ टास्क डेलीगेट करना ही काम नहीं है कि मैं ऑफिस में आऊं और मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर द डे एंड आई सी टू इट दैट द टास्क इज डन. इट गोज बियॉन्ड दैट, इट ट्रांसेंड्स दैट. तो क्या होता है यहाँ पे? fostering a culture or giving birth or giving rise to a culture or encouraging a culture of vision driven engagement. मतलब सिर्फ लीडर का ही एंगेजमेंट वहां पे जरूरी नहीं है, सबऑर्डिनेट्स का भी है. सो दे आर ट्रीटेड एट पार विद देयर लीडर्स, राइट? लाइक यू आर आल्सो अलाउड टू गिव इन योर इनपुट्स एंड यू आल्सो हैव टू फील मोटिवेटेड एंड विजन ड्रिवन, एज इन व्हाई एम आई वर्किंग. यू आर नॉट जस्ट एमलेसली फॉलोइंग ऑर्डर्स. ठीक है. Intrinsic motivation, मतलब internally you are motivated to work, okay, not because you're getting a particular pay but because your ideas are aligned with the vision of the company. ठीक है. And intellectual stimulation, intellectually you are stimulated, मतलब your strengths are identified and you are given a task which you do the best, you enjoy doing and you also excel at that. तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया है when you have a transformational leader. ठीक है. Charismatic leaders such as Steve Jobs exemplify this approach. तो ये जो transformational leader Steve Jobs is a wonderful example for this kind of leadership. Not merely orchestrating corporate strategy, but redefining industry trajectories through visionary foresight and relentless innovation. Why do we know Steve Jobs? Why is he the visionary that we consider him to be? पूरे उन्होंने रीडिफाइन कर दिया था ना पूरे वर्क कल्चर को अपने टाइम पे. So there was this entire wave of innovation that he brought in. He actually broke down all those traditional जो work cultures थे and the way in which task was delegated. So he brought with him that storm of innovation, and that is only possible when leader himself is a visionary, right? Himself or herself, when they are somebody you can look up to. ठीक है. They are far sighted. So they not only execute the strategies blindly, they redefine the trajectories, the path, the way in which the industry has been functioning, right? Through visionary foresight, they're far-sighted leaders and relentless. Relentless is continuous without stopping. Okay? When you are continuously innovating.
A pivotal tenet of transformational leadership lies in individualized consideration, wherein leaders tailor developmental strategies to augment is increase the latent potential of each subordinate. जो मैंने बोला ना, आपको वो काम दिया गया है जो करने में आप इंजॉय भी करते हो और आप उसमें सबसे अच्छे भी हो. सो बेसिकली आपका स्किल सेट आइडेंटिफाई, आपका स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई बहुत अच्छी तरीके से किया गया, एंड योर स्किल्स आर बीइंग पुट टू ग्रेट यूज. सो दैट इज अ वंडरफुल आउटपुट. If you have a leader who understands this, you will be more motivated to work because you are going to see your outputs, you are going to see results, and overall as a team वो बहुत बेनिफिट करेगा. ठीक है, यू विल नॉट फील लाइक अ मिसफिट और वर्क विल नॉट फील लाइक बर्डन टू यू. यू विल बी ऑल्सो फ्री टू इनोवेट देन. ओके, यू विल ब्रिंग मोर होलिस्टिक आइडियाज टू द टेबल. ठीक है, दिस फॉस्टर्स हाइटेंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. तो इससे आपका जो कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता है, बिकॉज आप अपने काम को इंजॉय करते हो. येट पैराडॉक्सिकली, मतलब इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एंड ओवर रिलायंस ऑन इंस्पिरेशन कैन एंजेंडर इज गिव राइज टू लीडर डिपेंडेंस. मतलब अगर कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी काम करने के लिए, कि माय बॉस कम्स इन एंड ही गिव्स इन दोस वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, ओनली देन आई विल बी एबल टू फंक्शन. तो इसका मतलब तो आप अपने लीडर पे डिपेंडेंट हो गए ना. आपका काम आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, एक पर्सन का प्रेजेंस आपको मोटिवेट कर रहा है, एंड द मोमेंट दैट पर्सन लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड्स टू शिफ्ट और व्हाटएवर, तो आप वो चेंजेस को ले नहीं पाओगे. तो योर प्रोडक्टिविटी और योर एबिलिटी टू वर्क इज नाउ डिपेंडेंट ऑन the impetus, external stimuli provided by that one visionary. ठीक है, तो वहां पे एक ओवर रिलायंस हो गया, राइट. ओवर डिपेंडेंट ऑन दैट लीडर नाउ. ठीक है, पोटेंशियली स्टिफलिंग ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग. मतलब आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, यू विल फील द नीड टू कंसल्ट. कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि एक्सट्रीम फैन गर्लिंग जो चीज होती है ना, लाइक यू आर लाइक एन आर्डेंट फैन ऑफ अ पर्सन, ऑफ द आर्ट ऑफ द पर्सन. तो उसकी वजह से क्या होता है ना, अपना इंडिविजुअलिटी लूज करने लगते हो. तो और कॉर्पोरेट सिनेरियोज में कैसे पैन आउट होता है वो, कि जस्ट बिकॉज यू ट्रस्ट द पर्सन, you really respect the person, you are in alignment with his or her vision, तब हर चीज में उनका अप्रूवल चाहोगे. और जैसे ही वो अप्रूवल देने के लिए नहीं होंगे किसी रीजन की वजह से, आप अपने डिसीजन मेकिंग को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. तो आपको जो पर्सनल स्किल सेट्स है वो कहीं ना कहीं स्टाइफल हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू सफोकेट अ बिट. ठीक है, क्योंकि आप ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाओगे या लेना नहीं चाहोगे. यू विल नीड द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन टू वैलिडेट योर डिसीजंस एट एवरी स्टेप. ठीक है, furthermore, while transformational leadership thrives in dynamic environments, वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ये लीडरशिप बहुत काम करती है, जहाँ कंटिन्यूसली सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक क्विक डिसीजंस. ठीक है, इट्स एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी में डिमिनिश, मतलब इट्स एफिशिएंसी में रिड्यूस इन कॉन्टेक्स्ट डिमांडिंग प्रोसीड्यूरल रिजिडिटी एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्डाइजेशन. अब हर टाइम एक कंपनी को ना इतना क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. देयर आर पीक्स एंड ट्रफ्स. ठीक है, वेव के जैसा कभी कभी जरूरत पड़ता है, और कभी कभी लाइक लेट्स से कोविड एज अ सिचुएशन डिमांडेड रैपिड चेंजेस टू डिसीजन मेकिंग, बट वो रह गया क्या? नहीं रह गया ना. नाउ वी रिक्वायर, डेफिनेटली वी रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, बट उस स्केल पर नहीं. तो अब एक इंसान तो एक पर्टिकुलर वे में एक फंक्शन करता है, तो कभी कभी वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ना वो रह जाता है, राइट, बट वी डोंट नीड इट. तो जहां पे भी डायनामिक एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है. कभी कभी हमें चाहिए कि चीजें स्टेबिलाइज ही होकर रहे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हमने अचीव किया हम उस पर स्टेबिलाइज रहे, रादर देन कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस एंड स्टफ. तो यहाँ पे ये सफर करता है. ठीक है, thus the evolution of leadership necessitates a hybridized approach. एक हाइब्रिडाइज्ड अप्रोच की हमें जरूरत है, अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, बैलेंसिंग ट्रांसफॉर्मेशनल डायनामिज्म विथ ट्रांजैक्शनल प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म इज प्रैक्टिकलिटी. मतलब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी बुरी नहीं है, बट उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, राइट. जहाँ पे आपको एक बहुत ही मतलब मोनोटोनस लेट्स से वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पड़ रहा है, राइट. कभी कभी हमें जरूरत है कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जरूरत है. वो सिचुएशन का डिमांड है, मार्केट का डिमांड है, डायनेमिक सिनेरियोस का डिमांड है. इनफैक्ट इट इज ऑल्सो वेरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट, राइट. लेट्स से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज टू इनोवेट अ लॉट. लेट्स से अभी चैट जीपीटी आ गया, डीप सीक आ गया, तो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, टू बी वेरी वेरी क्विक इन लॉन्चिंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट. बट ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी इंडस्ट्रीज which do not require innovation at such a rapid rate, but they require things to be functioning smoothly for their clients. Let's say the banking sector.
इनोवेशन की जरूरत है बट इतने रैपिड स्केल पे नहीं कि रोज ही कुछ नया लॉन्च कर दे रहे, वो प्रेशर वहां पे नहीं होता है, उसकी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट है. तो डिपेंडिंग ऑन विच एनवायरमेंट, so we have to balance this dynamic transformational leadership with transactional pragmatism, मतलब practicality. ठीक है. As organizations navigate an increasingly complex ecosystem, definitely ecosystem around is complex, change भी हो रहा है बट कभी stabilization की भी हमें जरूरत है. तो this interplay between visionary leadership and structural stability underscores, highlights the importance, imperative is importance for contextually adaptive leadership. यही की है कि context को देख के हम adapt कर ले, हम change कर ले कि कब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है और कब हमें सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की जरूरत है. करेक्ट. तो अ पैराडाइम शिफ्ट रीडिफाइनिंग एग्जीक्यूटिव एफिकेसी. तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस एग्जीक्यूटिव एफिकेसी. मतलब लीडरशिप रोल्स में, सी स्वीट रोल्स में जो लोग होंगे उनमें हमें ये क्वालिटीज देखने, मतलब वी विल सीक दोस क्वालिटीज की एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए. सो एफिकेसी इज एफिशिएंसी. तो न्यू एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू सॉल्यूशंस, तो न्यू एज प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू एज सॉल्यूशंस. तो अभी हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली अ गुड डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द टू, इंटरप्ले बिटवीन द टू. करेक्ट. इजी पैसेज था डेफिनेटली, ठीक है, कंपेयर्ड टू डे 20 वाज definitely थोड़ा सा hectic that way. If you have seen that, please have a look. चलो questions देखते हैं. ये easier था, right? Which of the following best encapsulates a paradox of transformational leadership as discussed in the passage? Okay. Paradox is conflict ना, transformational leadership का conflict. It fosters autonomy but simultaneously risks cultivating excessive leader dependence. हाँ, ये तो होता है कि यू आर गिवन दैट इंडिपेंडेंस टू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स, कि आपका स्किल सेट आइडेंटिफाई करके आपको एक अपना जगह दे दिया जाता है. ऐसा नहीं कि आई रूल एंड यू जस्ट फॉलो, बट लीडर डिपेंडेंस तो हो जाता है. हमने देखा ना कि आप फिर उनका वैलिडेशन का वेट करोगे. दिस इज नाइस वन. और देखते हैं, इट इज इफेक्टिव इन प्रोसीडरल एनवायरमेंट. ट्रांसफॉर्मेशनल नो, दूसरा वाला ना डायनामिक कॉन्टेक्स्ट में ये इफेक्टिव है, ये तो इंफॉर्मेशन एरर है. It emphasizes transactional incentives while undermining vision-driven leadership. No, ये तो नहीं था. दूसरा है ना, it disregards individualized employee development in favor of hierarchical efficiency. ये तो transactional का था, बट हम तो transformational की बात कर रहे हैं, तो ये सही है. ठीक है, कि ऑटोनॉमी है बट एक लीडर डिपेंडेंस भी है. ठीक है, वो उसका डाउन साइड है. The passage suggests that transformational leadership is most effective in environments characterized by, transformational leadership कहाँ काम करती है? डायनामिक एनवायरमेंट पे, राइट. हाई प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर. स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है. प्रिडिक्टेबिलिटी पे नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे काम करेगी. रैपिड चेंज एंड नीड फॉर इनोवेशन ड्रिवन एडेप्टेबिलिटी, करेक्ट. यहाँ पे कंटिन्यूसली एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, डायनामिक. bureaucratic structures where compliance outweighs creativity, यहाँ पे तो नहीं काम करेगी. अगर रूल्स फिक्स्ड है तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप काम नहीं करेगी इफेक्टिवली, राइट. उसे एक डायनामिक इन्वायरमेंट चाहिए. स्टेबल इंडस्ट्रीज नो, वेयर ट्रांजैक्शनल इंसेंटिव्स डोमिनेट एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो नहीं होगा. ओके, जहाँ पे रैपिड चेंज की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, वहां पे. आज के डेट में ये कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है? एग्जाम्पल एआई इंडस्ट्री हो सकती है. वहाँ पे बहुत इनोवेशन का भी स्कोप है और बहुत हाईली डायनामिक है एनवायरमेंट. The author implies that future leadership models should, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. एक समरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है जहाँ पे यूजुअली the author tries to give a very balanced opinion, है ना. तो क्या रहता है? प्रायोरिटाइज ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजी. एक के ऊपर दूसरे को प्रायोरिटाइज करने की बात नहीं की गई थी, बैलेंस की बात की गई थी. इंटीग्रेट एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप फॉर ऑप्टिमल एडेप्टेबिलिटी. बिल्कुल, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करने की बात हुई है. एलिमिनेट हायरार्कियल स्ट्रक्चर, नो, वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग, एलिमिनेटिंग. देखो ये कीवर्ड देखते साथ ना आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन चॉइस, आंसर चॉइस सही नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग वे टू एक्सट्रीम, जबकि बात तो बैलेंस की हुई थी. टोनालिटी ऑफ द पैसेज को मैच करना है. ओके,
रिवर्ट टू ट्रांजैक्शनल, रिवर्ट कब करते हैं, जब कुछ यूज किया और गलत हो गया। ऐसा तो नहीं था कि हमने ट्राई किया था दूसरी टाइप का लीडरशिप, काम नहीं किया तो वापस चलते हैं, रिवर्ट नहीं किया, ठीक है। वी जस्ट इंटीग्रेट, वी नीड टू इंटीग्रेट इन फ्यूचर, ठीक है। सो दिस वाज फॉर डे 21, end of week 3. I hope you're having an enriching learning experience. So thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.